इसमें आपके जो रोल्स जितने भी है, सो इसकी वजह से आपको काफ़ी सारे ग्लोबल इन्वेस्टर से बात करने का लाइक इंटरेक्शंस भी काफ़ी रेगुलरली होते हो गए, वो आर लाइक लुकिंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया एट्सेट्रा? वो तो जब मैं क्रेडिट स्विस में था तभी भी होते थे, अभी भी एक्सिस कैपिटल मतलब इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रोकर्स इन टाउन. सो जितने भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं सब हमारे क्लाइंट्स हैं. राइट. सो उनको अगर कोई इंडिया के बारे में समझना है तो ज़रूर हमारे पास है. So अभी like in your interactions with all these global investors, अभी like what are they thinking about India? मतलब जो conversations आपके होते हैं इन सब के साथ, तो इंडिया के बारे में क्या बात होती है? देखिए, इन्वेस्टर्स भी एक मतलब एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ नहीं है. सी इन्वेस्टमेंट्स, the whole universe, or at least I would say that the space is best considered like an ecosystem. तो ecosystem में बहुत तरह के स्पीशीज़ होते हैं. कुछ होते हैं जो मतलब वो चीटियों जैसे जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स होते हैं कि वो आधा मिनट पे 5 सेकंड पे 15 सेकंड पे ट्रेड करेंगे, बाई सेल, और ओवर अ पीरियड ऑफ अ ईयर दे विल एंड अप मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी. सो दे आर दोज टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स. Their asks on what are the characteristics of a good market are very different from that of what I would call the elephants, जो वो पैसे लगाए और 5 साल के लिए छोड़ दिया कि ये कंपनी अच्छी लग रही है, प्रमोटर अच्छा लग रहा है, इंडस्ट्री अच्छी लग रही है, वैल्यूएशन ठीक है, लगा दो पैसे. कुछ जो एकदम ही एक्सट्रीम है वो तो ये कहते हैं कि भाई ऐसी कंपनी में पैसे लगाओ जो कभी बेचने की ज़रूरत ही ना पड़े, कि आप परमानेंट इन्वेस्टर बन जाओ. तो इन दोनों के बीच में काफ़ी अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स हैं. बट आई वुड से दैट द रियलिटी दैट इंडिया हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम टर्म ग्रोथ पोटेंशियल is not lost on them. That India has, and these are all trite, often repeated remarks, but they're very powerful in the sense that if your workforce itself is growing at 2% a year and it compounds, it's a lot. If you are very far away from the productivity frontier and there is a way to get there and you are not having obstacles in the way, that's great. If your balance sheet is clean, and I call it, the marathon runners example, that would you rather, if someone has to run a marathon, would you rather choose someone who's already run 2 marathons immediately, or would you that someone who's well rested, अंदर में काफ़ी ग्लूकोज स्टॉक भरा हुआ है, and then they start running. So India is more of the latter, कि बैलेंस शीट्स क्लीन हो गई हैं, लेवरेज कम है. आप देखें गवर्नमेंट का भी, and this is something that most people don't realize, that US economy, the US economy is the only one which is above its pre-pandemic path. See, most economies are now above pre-pandemic levels. 2019-20 के level से ऊपर हैं. But US is the only economy which is above its pre-pandemic path. And that is primarily because their fiscal deficits are gone through the roof. जैसे जैसे fiscal deficit बढ़ते हैं, you are kind of borrowing growth from the future. What people don't realize is that China, which is also done reasonably well, though it is well behind its pre-pandemic path, its fiscal deficits in aggregate are at the same level as they were in 2020, the COVID year. तो हम लोग यहाँ पे थे, इंडिया ने अपना फिस्कल डेफिसिट जोर से गिराया है. Now the question to ask is कि चली रही दुकान की, तो फिस्कल डेफिसिट लेके फ़ायदा क्या है, मतलब कम करके क्या फ़ायदा हुआ. And this is where the medium term outlook on growth starts to become very meaningful. जैसे आप यूएस का एग्जांपल लें. यूएस इज़ द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड. लोगों को लगेगा कि और हमें भी लग रहा था कुछ साल पहले तक कि अरे यार वो तो नोट प्रिंट कर करके इकॉनमी को ग्रो करा रहे हैं, और बिकॉज दे द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड दे डोंट फेस एनी पेनल्टी. तो दिस लाइक गेटिंग ग्रोथ फॉर फ्री, व्हाई कांट दे डू मोर. वो मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी और ये सब चालू हो गया था. But if you look at 20-30 year history and you see how the US net international investment position has changed, yani as a country, how they are now a lot more indebted than they were, say, 5 years back or 10 years back. You realize that, and then therefore the currency now needs to undergo an adjustment. You realize that there is no free lunch.
So the fact that the government of India has been doing fiscal consolidation, कि वो काफ़ी डिसिप्लिन तरह से कि भाई पैसे बर्बाद नहीं करने हैं, जो पैसे हैं टैक्स पेयर के पैसे हैं उसको प्रूडेंटली खर्च करना है, अगर खर्च करना भी है तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अच्छा होता है. So a lot of those things make India like a very healthy human being, well rested, about to run a marathon. And therefore, if you're an investor investing for 5, 10, 15 years, it is a place where you can still make mistakes. You can end up backing the wrong companies. You can end up backing the wrong sector. But it is broadly a good place to be. If you are a hedge fund, and hedge fund is also I would say a wrong characterization. hedge fund लोगों को लगता है कि वो आज बेचो, आज खरीदो कल बेचो वाले हिसाब से, कुछ ऐसे नहीं होते. मतलब काफ़ी लोग 6 महीने 12 महीने के बेट्स भी लेते हैं. बट लेट्स से जो शॉर्ट टर्मिस्ट इन्वेस्टर हैं, जो बहुत जल्दी अंदर बाहर करते हैं, उनके लिए मुझे लगता है इंडिया थोड़ा अभी स्ट्रेच्ड हो गया है. तो 2-3 महीने पहले इंडिया वॉज एक्चुअली आई वुड से 2 months बैक इंडिया वॉज वेरी चीप और मच चीपर दैन इट यूज टू बी. जो पी प्रीमियम टू वर्ल्ड है वो एकदम बॉटम पे, नियर बॉटम आ गया था, बॉटम ऑफ द ट्रेडिंग रेंज. इंडिया की ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस लोग डाउनग्रेड किए जा रहे थे. अब डाउनग्रेड्स मेरे ख्याल से ख़त्म होंगे और अब हमारी इकॉनमी बेटर करेगी. तो बट मार्केट इज़ ऑलरेडी प्राइस्ड इन. तो मुझे लगता है कि अब मार्केट जो है उतना अच्छा. सो इसलिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, दे वेरी एक्साइटेड, कमिटेड, इन्वेस्टिंग इन बिल्डिंग अप टीम्स. तो लोग इंडिया टीम्स को बूस्ट कर रहे हैं. जो असेट एलोकेटर्स हैं वो इंडिया में और पोजीशन बढ़ाना चाहते हैं. जो शॉर्ट टर्मिस्ट हैं उनको अब लग रहा है कि थोड़ा मार्केट शायद खिंच गया है. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.